ਫਾਊਂਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 80 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 70 ਦੀ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 13 ਸਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। 10,000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮੰਤਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਤੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਅਰੋੜਾ। ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੌਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਨੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਖਾਏ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10,000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ उठाए और पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ जाए। यह जन आंदोलन का मकसद है। ठीक है, मैं बस कंक्लूड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो ये अभी यहाँ पर भी हम देख रहे थे, बड़े सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर कि इतने बच्चों को लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। इसी तरीके से ये जो जन आंदोलन है इसके अंदर 10,000 मार्शल जो सिविल डिफेंस में, याद होगा जब कोरोना आया था तो इन्होंने भर्ती करनी चालू करी थी यूथ की, जिसको सिविल डिफेंस बोलते थे। तो 10,000 ऐसे बच्चे जिन्होंने सिविल डिफेंस ज्वाइन करा और उनको फिर बाद में इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लेके बोला कि हम इनको भर्ती नहीं कर सकते, तो जो उनके 2 से 3 साल उस एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए वो भी इस जन आंदोलन में जुड़े। तो जो ये मार्शल्स वाला सिस्टम है जो दिल्ली में दिखाया जाता है, और अभी मैं आ रहा था यहाँ पे भी मैंने देखा बड़ी सारी जगहों पे लगा हुआ है कि हमने इतने यूथों को रोज़गार दे दिया है। आज इलेक्शन से पहले दोबारा वही स्कीम चलाई गई कि हमने रोज़गार के लिए यूथ को शामिल किया और दोबारा मार्शल चलाए। जैसे ये इलेक्शन ख़त्म होएगा फिर दोबारा वो लोग फिर बाहर आ जाएंगे। तो बड़े सारे ऐसे बच्चे जो मार्शल बन के वॉल्टियर जुड़े और आज उनकी ये हालत है कि एक टाइम की रोज़ी रोटी भी नहीं कमा पा रहे, वो भी इस जन आंदोलन में जुड़ चुके हैं, जो कि पहली बार पब्लिक डोमेन में कहीं पे उनकी आवाज़ कलेक्टिवली आ रही है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा अगर यहाँ पे भी इस तरीके के
कोई यूथ है जिनके साथ यही एक्सपेरिमेंट वहाँ का करा जा रहा है, तो वो ध्यान रखें कि जो लोग वहाँ जुड़े थे आज 3 साल 4 साल बाद वो एक एक टाइम की रोज़ी रोटी के लिए परेशान घूम रहे हैं, तो इन जुमलों में ना आए और इस जन आंदोलन में दिल्ली में आके हमारा साथ दें और उन 10,000 परिवारों में जहाँ लड़के लड़कियाँ हैं उनसे पूछें कि असलियत क्या है इस वेलफेयर और डेवलपमेंट मॉडल की। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ आए। थैंक यू। 23 तारीख का कार्यक्रम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਬੰਦਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਟੀਚਰਸ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ NGOs ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ NGO ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ 80 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਇਸੀ ਦਾ ਇਜਾਦ ਅੱਜ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, पॉलिटिकली सोचो। थैंक यू। हाँ जी सर। अमृतसर के आदरणीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। मैं बलदेव राजपूत हूँ हिमाचल से और मैं एक पार्टी को प्रेजेंट करता हूँ, स्वाभिमान पार्टी। देखिए अभी जो सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, अपने इस वातावरण में 4 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरा है समाज सत्ता, तीसरा है राज सत्ता और चौथा है अर्थ सत्ता। ये 4 सत्ताएं जो हैं वो क्रियाशील हैं, परंतु वर्तमान में राज सत्ता ने सभी सत्ताओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वास्तव में धर्म सत्ता सर्वोपरि चाहिए, दूसरे स्थान पर समाज सत्ता चाहिए, तीसरे स्थान पर राज सत्ता। राज सत्ता जो है धर्म सत्ता और समाज सत्ता के अनुकूल चलती है तो देश का, समाज का विकास भी होगा, भला भी होगा। वर्तमान में ये हो रहा है कि राज सत्ता सब पर हावी है और सारी सत्ताओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमने ये तय किया है कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का अंकुश हो, तब जाकर के राज सत्ता जो है वो ठीक से चलेगी। जैसे मैं राम राज्य की बात करता हूँ, तो राम के समय में वशिष्ठ मुनि होते थे धर्म सत्ता, और दशरथ ने भी और राम ने भी वशिष्ठ मुनि के निर्देश के अनुसार अपना काम चलाया, सारा राज का चलाया। इसका अर्थ इसी कारण से कहा कि राम के राज्य में राम राज कहूँ न व्यापार, मतलब ना रोगी होता था, ना व्यक्ति मरता था, मतलब बचपन में नहीं मरता था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी और सब लोग सुखी थे, कोई रोगी नहीं था। इस कारण से था कि धर्म सत्ता सर्वोपरि थी। वर्तमान में जो व्यवस्था बिगड़ गई है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। हमने तय किया है कि अब जो पार्टियां लाइक माइंडेड हैं, देश और समाज का भला चाहती हैं, उन पार्टियों को इकट्ठा किया जाए और उसको हम इकट्ठा करने का हम प्रयास किया हमने। तो जैसे कहा गया 80 से ज़्यादा पार्टियां हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाई जो दिल्ली का इलेक्शन है, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश का दिल है ना, तो दिल्ली से अगर कोई शुरुआत होती है तो सारे देश में फैल जाएगी। तो हमने तय किया है कि 70 कंस्टिट्यूंसी में ठीक अच्छे ईमानदार देशभक्त
निष्ठावान नेता जो है वो चुने जाएंगे, तब जाकर के सारे देश को एक संदेश जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दिल्ली को पकड़ा है। दिल्ली में 77 कंस्टिट्यूंसियों में अपने उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे, क्योंकि पंजाब की भूमिका जो दिल्ली में ज़्यादा है। जैसे कहा गया, दिल्ली पंजाबी और सिख जो है वो दिल्ली में अधिक संख्या में है। अगर पंजाब का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। तो मैं ये पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूँगा कि हमने तय किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, विष मुक्त खेती, नशा मुक्त व्यक्ति, ये 3 हमारे स्लोगन है। वर्तमान में अपने युवाओं को राजनेताओं ने नशे में धुत कर दिया। इस कारण से जिस देश का युवा जो है नशा युक्त हो जाएगा, उस देश का क्या कल्याण होगा। अपने इस देश की आबादी का 45 करोड़ जो युवा हैं, और अमेरिका की आबादी 38 करोड़ है। अगर देश का युवा ठीक से ठीक मतलब खड़ा हो जाए और उसका विचार, उसका क्रिया, उसके चिंतन ठीक हो जाए, तो हम सारे विश्व में राज कर सकते हैं। तो इसलिए ये नशा जो है, नशे की शुरुआत जो है वो राजनेता करते हैं। पंजाब से हिमाचल में भी नशा जाता है, दिल्ली में भी जाता है, हर जगह नशा जाता है। तो ये नशे के जो व्यापारी हैं, इनको ठीक करना ये समाज का दायित्व बन जाता है। और ये समाज ठीक लोगों को आगे भेजेगा तो मुझे लगता है कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप पत्रकार बंधु जो है अपने समाज का एक चेहरा हैं, समाज को सही और गलत दिशा जो है वो देते हैं, तो आप अपना दायित्व ठीक से निभाइए। ये चौथा स्तंभ है अपने इस लोकतंत्र का। तो चौथा स्तंभ अपने दायित्व को निभा देगा तो राजसत्ता भी ठीक हो जाएगी और सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं आए हुए मीडिया ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ AK ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਖੋਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੂਮ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। और एक AME कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेस्टिजियस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी। यह चलता रहा। मैं चलाने काफ़ी तकलीफ़ा आईयां, विच काफ़ी प्रॉब्लम्स आईयां, और जोड़ा मेरा बिजनेस सी वो हौली हौली बंद दे उदे ही आ गया। उसका कारण यह सी कि मैनू गौरमेंट का सपोर्ट नहीं मिलती सी। तो AME कॉलेज तो मेरा 2018 बंद हो गया सी, और एयरलाइन मेरी पिछे बंद हुई है। तो मैं फिर एयरलाइन बाद सेल भी कर दिता। मैं काफ़ी लॉस होया ये। उसका कारण है कि साड़ी गौरमेंट है ना, भावें आप पार्टी होए भावें BJP होए, गौरमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं रहा मैनू। तो मैं सोचा क्यों ना मैं राजनीति जावां, तो उस करके मैं राजनीति उतरिया। मैं देखा क्यों ना मैं देखा कि ये चीज़ां क्यों, करप्शन क्यों हो रही है। कोई भी असी काम कराने सानू पैसे देने पैंदे ने। तो मैं इस करके मैं क्या राजनीति उतरना। तो मैं अन्ना दे अंदोलन 2011 मैं देखा चलो केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा स्टैप लिया, जी करप्शन है वो बंद करेंगे। तो मैं आया तो देखा 2-4 साल तो चलो थोड़ा बहुत ठीक चलिया। उस तो बाद लोग जड़े असली बंदे सी, ईमानदार जड़े अंदोलनी जड़े सी, वो जाने शुरू हो गए, या उन्होंने कट दिता या वो चले गए। बाकी रह गए जेबां भरन वाले। हुण तुसीं देखो दिल्ली करप्शन इन्नी हो गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग ले लो, करप्शन ले लो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ले लो, कोई भी काम नहीं हो रहा। और जो काम है जनता जो काम करना सी वो सारा रुक गया दिल्ली जी। और दिल्ली की जनता इस टाइम इन्नी परेशान है, टुटियां सड़कां, पानी पीने नहीं मिलता। कई इलाकों में पानी आता नहीं, और कितने आता उत्थे साफ पानी नहीं आता। पोल्यूशन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। इधर ध्यान ना दे के दूजी गल्लां ही लागे ने, और इन्ने घोटाले करते, शराब घोटाला, फलाना घोटाला, और सारे मंत्री अद्धे से ज़्यादा जेल ही चले गए। इन्होंने जोड़े मेन सी जोड़े मंत्री वो जेल ही चले गए। उसका कारण यह सी कि इन्हों का जोड़ा काम करता तो है ही नहीं सी, काम तो इन्होंने किया ही कोई। लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया, लोग करप्शन शुरू हुई तो जेल जाने शुरू हो गए। साडा कहने का मतलब है कि इन्होंने दूजा रास्ता अपनाया फ्री बीज का।
फ्री बीज कह रही है 2100 रुपये देंगे लेडीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕਿ 2100 ਰੁਪਏ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਗਿਵ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ 18000 ਰੁਪਏ ਮੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ और फिर ब्राह्मणों ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 18000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ 18000 ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਏਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਲਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਯਾਨੀ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਇਨਐਡੂਕੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ मैं नहीं कहना चाहना कि यह चीज़ें पंजाब ही ना हो चलो दिल्ली से चलो ठीक है दिल्ली चल रहा है दिल्ली लोग जो भी है हूँ आने वाले टाइम ही शायद इस बारी केजरीवाल नहीं आएगा मन लगता है बट मैं चाहना कि पंजाब के लोग जड़े इस चीज़ समझन कि केजरीवाल जी दिल्ली किस तरह जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं थैंक यू हाँ जी सर आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है भारत गठबंधन की तरफ से मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूं आपको मैं मेरठ से रिटायर हुआ हूं उत्तर प्रदेश सरकार में हेल्थ सर्विसेज में था मैं PMHS कहलाती है वो और 2019 में रिटायर हुआ उसके बाद समग्र विकास पार्टी के अध्यक्ष का पद लिया और मार्च 2022 से 3000 पार्टियों को सभी बड़ी छोटी सभी पार्टियों को चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो सके उनको हमने एक पत्र भेजा क्योंकि उसका मजमून भी बता दूं मैं मुख्य था वो कि कॉरपोरेटोक्रेसी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है उसने अमेरिका ले लो या कोई भी देश ले लें आप कॉरपोरेट्स जो है उनके हज़ारों करोड़ के लोन माफ़ होते हैं और एक छोटे किसान का व्यापारी का 10-20 हज़ार 30 हज़ार के लोन में भी उसको आत्महत्या करनी पड़ती है आज उसी कॉरपोरेट्स की वजह से सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका कहलाता लाखों लोग फुटपाथ पे हैं ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं छोलदारियों में रह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ झोंपड़ियाँ डाल के लोग रहते हैं जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको कहीं एक भी इस तरह का टेंट नहीं मिलेगा तो ये सब एनालाइज़ किया पढ़ता रहा और देखता रहा पहले से पॉलिटिक्स में रहा कभी नौकरी से पहले भी पर सारी पॉलिटिक्स मैंने अभी तक जो देखी भ्रष्टाचार झूठ हिंसा और नफ़रत की राजनीति रही है अब चरम पे है वो अपने और इसमें जो जैसा भी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा केजरीवाल और बीजेपी ये दो तो बहुत ही ख़राब हैं पर इनकी जड़ कांग्रेस है कॉरपोरेटोक्रेसी की भी जड़ कांग्रेस ही है 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने कॉरपोरेट्स को ऊपर लाना शुरू किया और जो आम जनता है उसको नीचे लाना शुरू किया वो कैसे कि इन्होंने कॉरपोरेट्स के हज़ारों करोड़ के लोन माफ़ करने शुरू किए और आपको ध्यान होगा कि बैंकों को बाउंसर रखने की इजाज़त मिली जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उसमें बाउंसर्स अपमान करते थे 30,000 का आपने लोन लिया आप किसान हैं आपने ट्रैक्टर का 30,000 का लोन नहीं दे पाए तो बाउंसर आपकी बेइज्जती करते थे और आप आत्महत्या कर लेते थे लातूर इसका बहुत बड़ा गवाह है आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा कि लातूर में हज़ारों किसान सालाना आत्महत्या करने लगे और छोटे व्यापारी गांव में किसी ने अपने व्यापार के लिए 50,000 का लोन लिया और 20,000 अगर वापस नहीं कर पाया तो बाउंसर उसकी बेइज्जती करते थे और वो आत्महत्या कर लेते थे तो बहरहाल ये सब कारण है उसके पीछे कॉरपोरेटोक्रेसी कारण है और कॉरपोरेटोक्रेसी या कॉरपोरेट तंत्र
उसी की वजह से आप सारे देश की स्थिति देख रहे होंगे कि अडानी अंबानी सिर्फ उन्हीं के पास पैसा है और आपके ये जितने भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब त्रस्त हैं कुछ को छोड़ के। तो मैं लौट के आता हूँ, ये जो हमने गठबंधन बनाया इसलिए था कि झूठ, लूट, नफ़रत और भ्रष्टाचार की राजनीति वो चरम पे जा रही थी। जैसा अभी आपने बताया कि जन आंदोलन चलाया इन लोगों ने, आप लोगों ने, और उसके बाद हुआ क्या, केजरीवाल सत्ता में आए और उसके बाद करप्शन शुरू हो गया और भयंकर करप्शन है। इतनी टूटी हुई सड़कें, आपके पंजाब में भी बहुत टूटी हुई सड़कें हैं, पहले कभी नहीं थी। चंडीगढ़ मेरा काफ़ी आना जाना रहा है, आज भी चंडीगढ़ की सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी, कहीं गड्ढे नहीं मिलते थे मुझे। और मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी तो उसमें जो गाड़ी जो है गड्ढों में जा रही थी, है ना, बम सब लोगों को लग रहे थे। और यहाँ अभी आए हम, इतना साफ, मैं कभी यहाँ नहीं आया हूँ पहले, पर लोगों से बातचीत की तो गंदगी और ये सड़कें टूटी होना, ख़राब पानी, ये भी पंजाब में शुरू हो गया। और ऐसे ही पूरे भारत का कोई बर्बादी मोदी सरकार कर रही है। आप लोगों से बेहतर मैं नहीं जानता, क्योंकि आप लोगों का रात दिन का यही काम है, आप सूचना लेके जनता तक पहुंचाना। तो मैं फिर से आता हूं लौट के, क्यों गठबंधन बनाया हमने, इसकी कुछ आपको तो मैंने इसकी वो बता दी, क्या नाम, जो नींव डाली। पर ये फिर 2 अक्टूबर 2023 को हमने मेरठ में जो क्रांति धरा है, आपको पता है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था। तो वहाँ एक मजाक की छोटी सी बात कर लूँ मैं, वहाँ बिला वजह ही आदमी लड़ने लगता है, तो वजह से तो लड़ेगा। तो ये वजह हमने शुरू की 2 अक्टूबर 2000, मतलब लगभग 1.25 साल पहले, है ना। और उसमें 11 राज्यों की 41 पार्टियां जुड़ी हमारे भारत गठबंधन से, और उसके बाद धीरे धीरे फैलता रहा। उसके बाद 2 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर को बलदेव राज जी ने, मैं इनको तारीफ़ करूँगा कि बहुत ही अच्छे और सच्चे आदमी हैं, इन्होंने हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा और मुझे उसमें चीफ गेस्ट बनाया। उसमें 8 पार्टी और 12 संगठन जुड़े थे। पर चूंकि ये पार्टियों का गठबंधन है, भारत गठबंधन, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी बता दूं मैं आपको, सिर्फ नाम भारत, भारत का मतलब तो आप जानते ही होंगे, भा का मतलब है ज्ञान, प्रकाश, सूर्य, रथ का मतलब जिसमें कंटिन्यूटी हो, और वर्ष का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ एक भूखंड। तो जहाँ का हर व्यक्ति ज्ञानरत रहता था, और कोई भी ज्ञानी होगा वो हमेशा कर्म में लगा रहेगा। और इसकी इंग्लिश में एक्सपेंडेड फॉर्म है बिनेवलेंट ह्यूमैनिटेरियन अलायंस फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। बिनेवलेंट का मतलब आप जानते ही होंगे, परोपकारी। आज जो है हमारे जितनी भी राजनीति है परोपकार से दूर ही है और भिखारी बना दिया है। परोपकार का होना अलग मतलब है और भिखारी बनाना अलग मतलब। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवीय दृष्टिकोण हो। तो मानवीय दृष्टिकोण में आप जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, पुअर क्लास है, आप उसके लिए प्रोग्राम्स ज़्यादा बनाएंगे, ना कि कॉरपोरेट्स के लिए। और कॉरपोरेट्स भी परेशान हैं। हम तो चाहते हैं जितने कॉरपोरेट बड़े हैं इससे भी 10 गुने बड़े हो जाएं, पूरी दुनिया उसमें अपना सामान भेजें। पर आज कॉरपोरेट क्यों परेशान है? क्योंकि उससे मनी एक्सट्रैक्ट की जा रही है। जैसे एयरटेल का ले लो आप, 50 करोड़ रुपया इससे डोनेशन लिया, पता होगा, आपने खूब वीडियोस देखे होंगे आपने। जब 50 करोड़ आप किसी से एक्सट्रैक्ट करेंगे मनी, तो वो 500 करोड़ कमाएगा या 250 करोड़ कमाएगा, कई गुना कमाएगा। तो हमारे कॉरपोरेट भी परेशान है। उन लोगों का भी कहना है कि हमसे ये जो चंदा लेना है ये बंद किया जाए, तो हम और अच्छा काम करेंगे, है ना। क्योंकि जो व्यापार से ही तो सारा देश चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है। कि दूसरी आपके किसानों को भी ये कॉरपोरेट्स जो है, जो घटिया कॉरपोरेट्स हैं, जैसे अडानी, आपकी सारी संपत्ति, किसानों की संपत्ति वो हड़प करना चाह रहा था, और उसके पीछे है नरेंद्र मोदी। भाई हम ये किसान, अगर जैसे आपके शंभू बॉर्डर पे पड़े हैं, कितना समय हो गया, ऐसी सिंघू बॉर्डर हरियाणा वाला, और ये बेचारे इन्होंने ही बचा लिया है देश को, किसानों को साधुवाद, और नहीं तो ये सारी संपत्ति किसानों की अडानी को चली जाती। बहरहाल मैं फिर से वापस आता हूँ, हमारा जो भारत गठबंधन की पार्टियाँ हैं, सिर्फ वही पार्टी जुड़ रही हैं जो ऑनेस्टी पसंद है, और वो चाहती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोज़गार। ये 4 प्रमुख हमारे स्तंभ हैं। लोकतंत्र के स्तंभ बताते हैं ना आप, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, साथ में प्रेस।
पर हमारा ये कहना है प्रेस तो सारे में है ही, प्रेस तो ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। पर जो पिलर है, आपको स्वास्थ्य अगर नहीं मिला तो बेकार है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोज़गार, आज रोज़गार सबको मिल जाए तो क्यों बर्बादी हो देश की। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना है, बाकी